नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं कुमार जितेंद्र। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा ने नई दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कार्यालय संभालने पर बधाई दी। अरुणाचल के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल निर्भय शर्मा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बैठक के दौरान सड़क, हवाई, दूरसंचार, जल विद्युत और अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं और राज्य के विभिन्न घटनाक्रम मुद्दों पर चर्चा की गई। देश की राजधानी दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्य के लोगों पर हो रहे लगातार हमले के मुद्दे पर बेजबरवा कमेटी ने नागालैंड हाउस में बैठक की। यह बैठक पूर्वोत्तर राज्य के उन लोगों के साथ की गई जो यहाँ पर कार्यरत हैं। बैठक में पूर्वोत्तर राज्य के लोगों की सुरक्षा के मुद्दे पर चर्चा हुई और सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि आने वाले दिनों में इस मामले को गृह मंत्रालय तक पहुंचाया जाएगा और मंत्रालय के साथ बैठक भी की जाएगी। बैठक में बेंजामिन मेखो ने मणिपुर के एक युवक की घटना को शेयर किया और कहा उस युवक की अब मौत भी हो गई है लेकिन न्याय नहीं मिल पाया है। वहीं अरुणाचल प्रदेश के सोलो म्यूजिशियन ताकर ने इस मामले पर अपनी बात रखी। I'm joined today by Advocate Lee and President of the Naga Students Union of Delhi, Maivio. So Lee, if you could just tell us, we know about the incident, of course, now, but the fact that this shameful act happened, and you often talk about, how maybe Northeasterners are afraid to file cases because of this reason. If you could just tell our viewers. See, yesterday, my friend Mabio and other student union, just to support the girl, they came there. And in fact, I also came to support them because by the time I come to know it, already they were beaten up and all inside the courtroom in front of the magistrate. Therefore, I thought, as an advocate, my presence might have given them support and all. But however, reaching there when I myself has to go through all this, I just realized that if I am being attacked, being an advocate, now what confidence would I give to a victim or maybe to my friend to say that, go and file a police complaint? Because after all, this is going to come to the court. And if the advocate has to behave this way, where do the justice come from? Therefore, I'll just tell you an incident. If you have remembered, the two guys were attacked in Ambedkar Nagar in the month of February. So one of the girl who was brutally beaten up and he was in ICU for 3-4 days, he in his police complaint, he says, I don't want legal action. So because this trust deficit now we already have with the police, now we have from the court, where do we expect this justice? And Maivio, you are a student leader yourself, and you've been fighting for so many of the Northeast people who reside in Delhi, and this has now happened to you. Yeah, it is a very unfortunate incident, and I never expected that. And it is a very serious incident, and also a very serious issue. I myself have been representing many of our people in the past many years, and I've been trying to help our people, and then our members are also having a very high hope in me that I can at least help them. But what has happened yesterday has threatened also and have frightened many of our Northeast students, and also I'm afraid even myself that how will I fight the case, because I have seen what exactly has happened in the court, just in front of the judge and also in front of many policemen. After informing the police that I'm not safe anymore, I'm not been able to be protected by the police, but nothing much have done by the police as well as by the judge. केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने असम के कर्बी आंगलंग जिले में हुए घटना की कड़ी निंदा की है। रिजिजू ने कहा गंभीरता से होगी इस पर कार्रवाई। असम के कर्बी आंगलोंग जिले में उग्रवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में पुलिस अधीक्षक और उनके एक पीएसओ की मौत हो गई। कर्बी पीपल्स लिबरेशन टाइगर्स और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी चल रही थी। वहीं गोलियों की चपेट में आने से गोस्वामी और उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। केंद्रीय संचार मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा पूर्वोत्तर राज्यों के समावेशी विकास के लिए संचार मजबूती को प्राथमिकता दी जाएगी। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर आज श्री MP बेजबरुआ के नेतृत्व में आए शिष्टमंडल से मिले और पूर्वोत्तर क्षेत्र की समस्याओं पर व्यापक विचार विमर्श किया गया।
श्री जावड़ेकर ने कहा कि पूर्वोत्तर क्षेत्र दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का मुख्य द्वार होना चाहिए। मैंने वन एवं पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन इस विभाग का कार्यभार संभाला और पिछले 3 घंटे से हम इसका एक रिव्यू कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं, कौन सी गतिविधियां हो रही है। और मैं जो इस मंत्रालय के प्रमुख 100 अधिकारी हैं उनसे भी मिला हूं और उनके लिए भी एक लीडरशिप कॉन्फ्रेंस हम एक आधे दिन की अगले सप्ताह में करेंगे। इट्स अ न्यू कंसेप्ट। हम ये मानते हैं कि केवल मंत्री बदल के गुड गवर्नेंस नहीं आता, सुशासन आता है जब प्रशासन का माइंडसेट बदलता है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि हर अधिकारी में वो जुनून होता है, जज्बा होता है और उसको रिकिंडल करना, उसको फिर से जागरूक करना जरूरी होता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर में ट्रैफिक व्यवस्था पिछले कई महीनों से अस्त व्यस्त रही है। ट्रैफिक कानूनों का धड़ल्ले से उल्लंघन किया जाता है। ऐसे में वाहन दुर्घटना की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। इसी मामले को चीफ स्टेट ऑफिसर सह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तोलो पोतम ने ट्रैफिक व्यवस्था की सुधार और अन्य मुद्दों पर ईस्टर्न स्काई मीडिया की ईटानगर संवाददाता नीलम राजा से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा तोलो पोतम ने। अभी हम ईटानगर के गंगा मार्केट के एरिया में खड़े हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चीफ स्टेट ऑफिसर और कम एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट तालोपोतम जी हमारे साथ खड़े हैं और इनका जो कार्यवाही यहाँ चल रहा है, जो हम कमर्शियली व्हीकल्स का जो चेकिंग चल रहा है, इनका कार्यवाही पूरे पुलिस के सपोर्ट के साथ यहाँ पर हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ा हम जानेंगे। सर, ये एग्जैक्टली चेकिंग क्यों चल रहा है और किस वजह से चल रहा है? खास करके हमारा ईटानगर में आप लोग मालूम होगा, सिक्किम भी एक ऐसे ईटानगर का एक जैसे हिली कैपिटल है, लेकिन सिक्किम में आप जाने से दिखाई देगा कि इस प्रकार का ट्रैफिक जाम होने से भी एक डिसिप्लिन में होता है। लेकिन हमारा यहाँ लोग बिल्कुल ही ना पुलिस का बात मानते हैं ना हमारा बात मानते हैं। तो पहले हम लोग बहुत प्यार से कोशिश किया, लेकिन हम लोग का बात नहीं समझने के लिए कोशिश किया और बिना गाड़ी कागज़ का हमारा जितना कमर्शियल व्हीकल है, आज सुबह आप हमारा साथ घूम के देख रहा है, अभी सामने में आप देखिए गाड़ी का सिग्नल ही नहीं है। तो गाड़ी का सिग्नल नहीं है तो वो कैसे मेन रोड में गाड़ी दौड़ेगा। 5वां नॉर्थ ईस्ट एनएसएस महोत्सव नेरिस्ट में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस अवसर पर तकनीकी शिक्षा में उच्च निदेशक डॉक्टर जोराम बेगी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र की छिपी क्षमता के बारे में बातचीत की। डॉक्टर योराम बेगी ने एनएसएस स्वयंसेवकों का आह्वान करते हुए कहा कि सामान्य रूप में क्षेत्र और देश के लोगों के बीच एकता और भाईचारे का संदेश फैलाने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यह 5 दिन का कार्यक्रम विभिन्न प्रसिद्ध संसाधन व्यक्तियों द्वारा आयोजित किया गया। 8 पूर्वोत्तर राज्यों से 300 से अधिक एनएसएस स्वयंसेवकों और अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। विशेषज्ञों ने नशीली दवाओं के दुरुपयोग रोकने पर बात की और सामाजिक जागरूकता फैलाई। इस अवसर पर सचिव आर.के. मिश्रा, प्रोफेसर एम. मुरलीधर, प्रभारी नेरिस्ट सुनील बासुमत्री, डॉक्टर वी.एन. शर्मा, एसएलओ, अरुणाचल प्रदेश सरकार और डीना मनी सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे।
अरुणाचल प्रदेश से खबर है कि सिक्योरिटी डॉग स्क्वाड बिल्डिंग सुरक्षा के दृष्टिकोण से काफी लचर दिख रहा है। इस टाइम्स का मीडिया ने किया इस पर विशेष कवरेज और सरकार तक पहुंचाई इस मामले को। यहाँ ना तो सही तरीके से चार दीवारी की व्यवस्था है, ना ही उचित मात्रा में सुरक्षा। यह बिल्डिंग जर्जर अवस्था में है। प्रवेश द्वार पर भी सुरक्षा के नाम पर किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के गोहपुर तेनाली स्थित नवनिर्मित बाजार में वार्ड नंबर 2 के काउंसिलर ने सामाजिक सेवा कार्य में हिस्सा लिया। सामाजिक सेवा कार्य का आयोजन शॉपकीपर्स और वेंडर्स के द्वारा आयोजित किया गया था। यह आयोजन ईटानगर APMC कॉम्प्लेक्स में किया गया। आयोजन में काउंसिलर तातुंग तानिया ने कहा कि नए मार्केट की स्थापना का उद्देश्य है आम जन और दुकानदारों को बेहतर सुविधा प्रदान करना। इसे विकास के नजरिए से देखने की भी जरूरत है। ये सोशल सर्विस जो गवर्नमेंट का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, तो यहाँ मार्केट शिफ्ट होने के बाद में अभी आपने बोला यहाँ कोई ड्रेन नहीं है, रास्ता नहीं है, इसी का वजह से यहाँ कस्टमर नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ जो व्यापारी लोग दुख है, जो सेलिंग नहीं है, तो इसलिए तो उन लोग का दुख को मैं शेयर करते हुए आज जस्ट हम लोग का कस्टमर आने जाने का थोड़ा सुविधा के लिए हमने ऑर्गेनाइज किया। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।